Uh, आज का जो टॉपिक है इट्स अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड. Everybody know about nowadays in the hospitals, the record has been maintained through the computer. So यानी computer के through उसको record किया जा रहा होता है. It's a kind of software, so but it's like a very comprehensive, and there are so many features in this particular software. तो उसमें से कुछ जो most important चीज़ें हैं उनको we are going to study in this particular lecture. Itself it's like a subject, like ये अपना एक subject है जिसके अंदर पूरा इसके ऊपर एक like 6 month एक semester का कोर्स हो सकता है. सही ना. Still, there are modifications and improvement has been going on in this particular software system. So, and it is nowadays it's working on to like इसको वो ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए जिसमें लेट सपोज के एक हॉस्पिटल का जो रिकॉर्ड है वो अगर आपके पास मौजूद है, so you can access that particular hospital record into the another hospital. So, integration जिसे कहते हैं. So right now, especially in Pakistan, there is no any like integration. Each and every hospital running their own electronic health record systems. In Western countries, like there are some counties, some states, so they have something similar integrated softwares related to EHR, but still it is not like the countrywide, it is the same for every place. So let's see the basic definition about the electronic health record. It's a patient history that available electronically on real-time basis with a secure channel for clinicians. Okay, so the main purpose is the patient's complete record is available either it's online, either in the hospital, and it will help to the other clinicians to take a decision about the patient when the patient has been visited again. So let's suppose if the particular doctor is of the, like let's suppose the family doctor is not available. So if the patient goes to visit some another doctor, so the history of the patient is very much important for the doctor. कि उससे पहले उसने क्या मेडिसिन ले रहा था, कौन कौन से टेस्ट हो चुके हैं, टेस्ट की क्या रिपोर्ट्स हैं. So if the doctor has a complete history about the patient, then it will be easier for the particular clinician to diagnose or give further treatment. Keep prescription वगैरह का भी concept उसमें मौजूद है. Let's see the small video about this particular electronic health record. कि इसमें कैसे काम करता है. Then we will continue our lecture. This is Peter J. Pollack, MD for Medical Practice Trends, and welcome to another EMR Simply Put video. In this issue, what is EMR? EMR means different things to different people. Electromagnetic radiation weapons, or paintball guns, or a rock band. Oh, sorry, that would be EMF. Or electronic medical records. This is the one we're talking about. An electronic medical record is simply a scanned digital version of a paper medical record. An electronic medical record system is a computer-based database system specific to one physician or organization. It is the digital record that a doctor maintains on his or her own patients, detailing personal information, medical history, and a list of diagnoses. The information of the individual typically integrates with the physician's practice management software system that handles scheduling and billing. Now, let's look at the two main types of EMR systems. Number one is a server-based EMR system, one that is typically located on the practice premises on a specialized computer called a server. Number two is a web-based EMR system, which is generally located off-site on the EMR company servers, and the medical practice accesses it via the internet. This is also known as software as a service or application service provider.
So now you know what EMR is and the two main types of EMR systems. In the next video, we'll discuss the pros and cons of ओके यहाँ पे इस वीडियो में आपने वर्ड सुना होगा लाइक EMR, इट्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड. So what is the like basic difference between two is the difference between these two is slightly different. Like initially the both terminologies will be used for the same thing, but now it is it's like clear that what is the like the difference between the electronic health record and an electronic medical record system. Let me tell you after some slides. Okay, so in electronic health record, EHR is the concept to collect the all the information about the individual patients and save into their servers. Okay, or maybe on the web servers. Like there are the two types, that either the hospital based or the web based EHR systems, and it will be like discussed with the other healthcare systems. Not only it contain the like the textual data of the patient, but also save the information about the patient's history, medication, allergies the patient that have, laboratory tests, radiological images. So this is the biggest task of the radiological images to save in the electronic health record system, because the highest bandwidth will be required to save this particular images. सही है. Vital signs like the patient monitoring data and billings and history of the checkup of the patient. So these kind of information has been saved into the electronic health record at the moment. This is like such kind of the devices, like it is maybe used on the tab, computer, on the mobile phone. सही ना, कोई भी patient आता है तो उसका complete data entry perform होती है. Once the data entry has been completed, the medical record system will be added into the patients and then give access to the doctor to see the basic information or the further detailed information about the particular patient. Okay, so what is the difference between the paper-based medical record or computerized medical record system? So यही है कि even if you have visited to the doctor in last 5 years, so you can see you cannot maintain your particular record. सही है ना, हमेशा कहीं ना कहीं पेपर जो होता है वो मिस हो सकता है. सही है, कोई ना कोई प्रिस्क्रिप्शन आपकी मिस हो सकती है. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन द पेपर बेस्ड रिकॉर्ड. सही है. फिर डेफिनेटली उसको कुछ इंफॉर्मेशन उसमें फाइंड आउट करनी हो तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. सही ना, टाइम लगेगा उसको देखने में, फाइंड करने में. सिमिलरली इन केस ऑफ हॉस्पिटल्स के अगर वो पेपर बेस्ड रिकॉर्ड रखना शुरू करें तो डेफिनेटली लुक लाइक दिस पर्टिकुलर पिक्चर कि इस तरह का हाल होगा. लाइक इनिशियली लाइक if we go back to like 20 years before, so the banking system and the healthcare system is look like that. There are a lot of files that they have to maintain, and in the hospital like policy they must maintain the particular patient record for some particular time period, like 5 to 10 years का कुछ होता था सिस्टम कि आपने उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है. सही है ना, तो इस तरह से वो फाइलों के अंदर उनको अपना रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ता था. So this is a very difficult task because it's required a lot of space to reserve this particular paper based record, और उसके बाद फिर उसको डेटा किसी पर्टिकुलर पेशेंट का निकालना हो तो it takes a lot of time. So you know, so these are some issues that are facing at the moment. So that's why the computerized electronic health record is supersede as compared to the paper based record system. अच्छा, फिर टर्मिनोलॉजीज़ की जो मैं बात कर रहा था, देयर आर सो मैनी similar terminologies exist along with electronic health record systems. You know, so उसमें कई जगहों पे आपको ये नज़र अभी आता है कि electronic health record is also known as. सही ना, so the most common terminology nearby the electronic health record, the electronic medical record systems. You know? So now this two terminologies is slightly been different
in that sense that the electronic medical record is maintaining the record which is related to the particular patient से ना patient से related जो data है वो उसमें maintain किया जा रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम में इट्स मच मोर बिगर देन द EMR सिस्टम सी ना. Even if you visit some hospital, so they given EMR ID सही ना, हर पेशेंट को एक EMR ID दे रहे हैं जहाँ जहाँ पे कंप्यूटराइज मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम को मेंटेन किया जा रहा है. सो उसमें ये होता है कि ईच एंड एवरी पेशेंट्स रिकॉर्ड विल बी मेंटेन इन देयर EMR सर्वर, सही है. जबकि इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड में डॉक्टर्स की इंफॉर्मेशन भी मौजूद होती है, like which patient like if a patient is visited 5 years to particular hospital, so they are also maintaining the record of the doctor, that which doctor prescribed which medicine, the billing history and so on. So by this way it's maintaining the finance, billing and doctors informations as well, so, you know. जबकि इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम में ऑल द पेशेंट्स रिकॉर्ड हैज़ बीन सेव्ड, सही है. उसके बाद फिर दूसरी टर्मिनोलॉजी हमारे पास आती है इलेक्ट्रॉनिक पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम, सही ना. सो इलेक्ट्रॉनिक पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ सो कॉल्ड द मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम और द इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम, सही ना. सो वो पार्ट इस सेंस में कि दिस इज़ अ पोर्शन विच इज़ गिवन बाय द पेशेंट टू एक्सेस हिज ओन डेटा, सही ना. सो पेशेंट जो है उसके पास भी यूज़र ID एंड पासवर्ड होती है जिसके थ्रू वो अपने रिकॉर्ड को चेक कर सकता है या अपने रिकॉर्ड को किसी अपने फैमिली फिजिशियन डॉक्टर के साथ शेयर कर सकता है, ठीक है. तो इट इज़ द लिमिटेड रिसोर्स एंड इट इज़ जस्ट लाइक वन पेशेंट एक्सेस देयर ओन रिकॉर्ड, कैन नॉट सी द अदर पेशेंट रिकॉर्ड. फिर इससे एक और रेलिवेंट टर्मिनोलॉजी है पेशेंट हेल्थ रिकॉर्ड, सही ना. सो द पेशेंट हेल्थ रिकॉर्ड PHR एंड द इलेक्ट्रॉनिक पेशेंट रिकॉर्ड ऑलमोस्ट द सेम थिंग, सही है. ये दोनों चीज़ें सेम चीज़ इस पर आती हैं. कंप्यूटराइज पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम इट्स CPR, like stand for CPR. So it's a system that is lying in like the hospital which is remain in this particular hospital system. यानी मीन्स के ये एक ऐसा रिकॉर्ड सिस्टम है जो एक हॉस्पिटल के पास मेंटेन हो रहा है, वो अपने पास ही रखता है, सही ना. अगर आपको वो रिकॉर्ड चाहिए सो दे कैन गिव यू इन द फॉर्म ऑफ प्रिंट, सही ना. it is just like the database that has been developed by their own hospital without any using the standard protocols. Like sometime it cannot be transferred. अगर आप उस डेटा को ट्रांसफ़र करेंगे तो हो सकता है कि अगले के पास उस पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर की सपोर्ट ना हो जिस पे ये ओपन हो रहा है, सही ना. तो इस तरह से यानी मीन्स के इट्स अ स्मॉल सॉफ्टवेयर विच इज़ नॉट लाइक द स्टैंडर्डाइज, सही ना. स्टैंडर्डाइज कैटेगरी में इसको उतना मेंटेन नहीं कर रहा है, लेकिन स्टिल इट इज़ रेलिवेंट टू इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम टर्मिनोलॉजी. कंप्यूटर बेस्ड पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम इट्स समहाउ रेलिवेंट टू द इलेक्ट्रॉनिक पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम, सही है. और फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लिनिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, सो द इट्स समहाउ रिलेटेड टू द लाइक द प्राइमरी केयर सिस्टम्स, सही है. तो उसके रिकॉर्ड को अगर मेंटेन जो है वो इस पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर में किया जा रहा है, सही ना. तो दीज आर द डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज दैट यू कैन हेयर फ्राम डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल्स, डिफरेंट पेपर्स एंड डिफरेंट कंट्रीज, सही ना. तो इस तरह से आपको मुख्तलिफ ये चीज़ें सुनने को मिलेंगी. इस तरह पाकिस्तान में आपको ज़्यादातर EMR नंबर सुनने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम, सही ना. सो द होल सोल सॉफ्टवेयर इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम दैट इज़ मेंटेनिंग ऑल ऑफ दीज इंफॉर्मेशन. यानी समझ लें कि तमाम की तमाम चीज़ें इस रिकॉर्ड सिस्टम में सेव हो रही हैं. The primary or the basic use of the electronic health record system is the patient care delivery, patient care management हो गई, सही ना. सपोर्ट प्रोसेसिंग हो गई, फाइनेंशियल एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग, पेशेंट सेल्फ मैनेजमेंट. सो मीन्स के इन अ हॉस्पिटल they have the different departments. The OPDs are the one thing, the billing place is one thing, the admission is one thing, so and the other laboratories and imaging technology, imaging radiological departments, other thing.
So the software has been integrated and each and every person has the access of the particular area only. सही ना, यानी फाइनेंस वालों के पास सिर्फ बिलिंग का ऑप्शन होगा. So the bill has been calculated as per patients admitted, यानी पेशेंट कितने दिन एडमिट रहा है और उसने कौन कौन से टेस्ट कराए एंड सो ऑन. तो अकॉर्डिंगली द फाइनेंस ऑफिस इज़ गेटिंग द टोटल अमाउंट ऑफ द इंफॉर्मेशन के कितना उसका बिल बन रहा है. सो वंस द बिल हैज़ बीन सबमिटेड द पेड बाय द पेशेंट्स एंड देयर फैमिली, so the finance office just entered, okay, the bill is cleared, they entered into the software. So it will be shown on the admission committee, तो जहाँ पे पेशेंट एडमिट हो रहा है तो उनके पास रिकॉर्ड चला जाता है कि हाँ इसके ड्यूज जो है क्लियर हो गए एंड सो ऑन. सही नहीं, जिस तरह से इन द हॉस्पिटल इट इज़ यूजिंग एज द प्राइमरी पर्पसेस. सही है. सेकेंडरी यूज़ जो है सो कॉल्ड द एडवांस यूज़ इन विच you can do the research as well. Like जब आपके पास let's suppose कि 100 patients का रिकॉर्ड अगर आ जाता है, so you can publish a very good research article by seeing the patient's record. कि अगर let's suppose कि अगर कोई भी आपके पास let's suppose कार्डियक patients का रिकॉर्ड है, so you can analyze कि कितने इसमें से वो क्या कहते हैं टैकीकार्डियक पेशेंट्स हैं, कितने ब्रैडीकार्डिया के पेशेंट्स हैं, इरेगुलर अरिथमिया कितना है, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, बाईपास ऑपरेशन. सो ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन हैज़ बीन saved into the electronic health record, so you can get the data and do your research. सही ना, उसके मुख्तलिफ रिसर्च के वो हैं. क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट भी इसमें टॉपिक है जो हमारा अगला टॉपिक आएगा. सही है. इसके अलावा फिर आप एज वाइज और डिजीज़ वाइज उसको कंपेयर कर सकते हैं एंड सो ऑन. सही है. एजुकेशन में डेफिनेटली इट विल बी हेल्प्स टू द मेडिकल स्टूडेंट्स के जो डेटा आपके पास आ रहा है तो उससे आप स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हो कि इस तरह का ये पेशेंट है. सही है ना, उसमें ये सिम्टम्स थे तो उसको हमने ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड की. सो इट विल बी यूज इन द एजुकेशन पर्पसेस. Public health and homeland security, it's like the western terminologies in which they are मैनेजिंग के किस सीज़न में कौन से ज़्यादा पेशेंट जो होते हैं वो उनकी तादाद बढ़ जाती है. सही ना, एक सीज़न होता है जिसमें फ्लू बहुत ज़्यादा हो रहा होता है. अभी तो खैर ये जो कोरोना वायरस का पेंडेमिक है इट्स अनदर इशू. और डेंगू का हमारे यहाँ सीज़न होता है. सही ना, जो सर्दियों का शुरू होता है. सो कॉल्ड इस तरह से जो पब्लिक हेल्थ वाले हैं तो उनकी रिसर्च इस तरह से होती है. और फिर वही के डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी होमलैंड सिक्योरिटी जो होती है वो एक्टिवेट होती है. जिस तरह कुछ हेपेटाइटिस वगैरह है तो उनको एक आइडिया होता है यार यहाँ पे हेपेटाइटिस इस पर्टिकुलर रीजन में ज़्यादा है तो उसको कैसे सेव करना है, सिक्योर करना है एंड सो ऑन. एंड डेफिनेटली द पॉलिसी सपोर्ट के जो मेडिकल रिकॉर्ड है उसमें क्या क्या कैसे इम्प्रूवमेंट आई जाए, उसको सिक्योर कैसे किया जाए एंड सो ऑन. तो इस तरह से इट विल बी यूजेस द इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड डेटा. So advantage of purpose of the electronic health record is the confidentiality of the patient's history. सही है ना, यानी मीन्स पेपर बेस्ड रिकॉर्ड को कोई भी एक्सेस कर सकता है. सही ना, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड को सिर्फ वही एक्सेस कर सकता है जिसके पास यूज़र आईडी एंड पासवर्ड होगा. तो लाइक दिस वे द डेटा हैज़ बीन लाइक सिक्योर्ड. ऑल्सो इट इज़ इनक्रिप्टेड. सही ना, इंक्रिप्शन पे अभी हम इतना नहीं जा रहे कि इसका इट विल बी ऑलवेज बी सेव इन द इनक्रिप्टेड वे इन केस इफ द डेटा हैज़ बीन हैक्ड एंड नोबडी कैन रीड इट. सही है. डेफिनेटली अगर हम जैसे पेशेंट का नाम लिखें या CNIC नंबर या सोशल सिक्योरिटी नंबर वॉट एवर द सिस्टम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड, सो यू कैन एंटर द नंबर एंड ईजिली एक्सेस द डेटा ऑफ द पेशेंट क्विकली. सही है. रिकॉर्ड इज़ अवेलेबल 24/7, यानी एनी टाइम वेन एवर द रिकॉर्ड पेशेंट रिकॉर्ड इज रिक्वायर्ड यू कैन एक्सेस इट. सही है. If it is the web based then definitely it will be accessible anywhere, any place. सही है. Staff productivity यानी means के staff will learn more about with the help of electronic health record to accessing the data available only the authorized persons. यानी means के डॉक्टर्स के पास एक अपना एक्सेस होगा, नर्सेस के पास एक अलग एक्सेस होगा, बिलिंग के पास एक अपना एक्सेस होगा एंड सो ऑन. सही ना. सो इट्स अ कॉम्प्रीहेंसिव सॉफ्टवेयर बट द एक्सेस इज़ लिमिटेड टू ईच एंड एवरी वन. लाइक जिस तरह हमारे पास CMS है तो उसमें CMS में स्टूडेंट्स का एक्सेस अलग है, फैकल्टी का एक्सेस अलग है, फिर डीन्स और जो चेयरमैन एंड VC का एक्सेस अलग है, फिर ओवरऑल जो एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सेस है वो अलग है एंड सो ऑन. सो सेम थिंग विल बी अप्लाई इन द इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम्स. So the basic the components of this electronic health record
is to integrate view of the data. Clinical decision support. Clinical decision support I will teach you in the tomorrow's lecture. The summary of that clinical decision support ke the data, let's suppose if we already implement some small programs in the C++ in the first semester कि अगर आपने इसमें pulse rate और blood pressure वगैरह कुछ लिखा है तो if the pulse rate is high, if the blood pressure is high, so you can suggest that okay, the patient is a little bit hypertensive, so you can give this particular medicines. So so this is called clinical decision supports. So it will be take the decision with the help of electronic medical record data. So clinical order entries हो गई, access knowledge to the resource, integrate communication supports. So these are the basic components for the electronic health record systems. The main feature of this record system, especially in the clinical decision support, whenever the data has been entered into the electronic health record and the data is let's suppose abnormal, so with the help of CDS you can generate alerts, reminders and clinical guidance. सही ना, यानी अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है, कुछ भी abnormality has been detected with the help of this particular system into the electronic health, so it will be alert the nurse. यानी मीन्स के जिस तरह जो पेशेंट मॉनिटर का बताया था कि मल्टीपल पेशेंट मॉनिटर हैज़ बीन सिंक्रोनाइज एंड सिंगल नर्स हैज़ बीन मॉनिटर्ड, और किसी भी पेशेंट का डेटा जो है वो एबनॉर्मल डिटेक्ट होता है तो नर्स के पास अलर्ट जनरेट हो जाए. सो इट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर सपोर्ट सिस्टम. सही है. Secure messaging for communication support, so for the clinicians, patients and support staff. So it means if the data has been maintained into the electronic health record, then definitely it will be secured messaging system, because the doctors access by their own ID, the patient will be access their own ID and the admin या staff will be access with their own ID. ठीक है ना. फिर इसमें अपॉइंटमेंट एंड स्केजुअलिंग भी हो सकती है. जो पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम है, सही ना, उसके थ्रू पेशेंट जो है अपना अपॉइंटमेंट स्केजुअल कर सकता है. इसमें रेफरल मैनेजमेंट हो सकती है कि डॉक्टर सेकंड ओपिनियन वगैरह लेनी हो तो उसके लिए उसको मैनेज किया जा सकता है. एक्सरेज अब यूजुअली जो है ना वो डिजिटल फॉर्म में ही सेव होते हैं. बहुत जो डेवलप हॉस्पिटल्स हैं, सही ना, इफ़ यू रिक्वायर्ड देन दे विल प्रिंट द एक्सरेज, एमआरआई और सिटी वगैरह की जितनी भी इमेजेस हैं, सही है ना. सो इट विल बी ऑल्सो सेव इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड इट कैन बी शेयर्ड टू एनी अदर रेडियोलॉजिस्ट. सही है. और फिर ऑनलाइन ही इसकी रिपोर्ट जो होती हैं वो मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम में इसको सेव किया जा रहा होता है. फिर एक्सेस टू द प्रीवियस कंसल्ट नोट्स एंड मेडिकेशन हिस्ट्री, जिसमें मैंने इसको पहले ही जिक्र कर लिया था. सही ना, कि इसमें कंप्लीट पेशेंट के मुतालिक उसके जो प्रीवियस कंसल्टेंट्स हैं या जो उन्होंने एडवाइस दी हुई है तो उसको देखा जा सकता है. जो मेडिसिन लेता आ रहा है उसको भी देखा जा सकता है. सही है. फिर इसके अलावा सब मुख्तलिफ मीन्स के इमेजेस के थ्रू, वॉइस के थ्रू या कोई टेक्स्ट के थ्रू जो इंफॉर्मेशन हैं, सही है ना, तो उनको भी आप फर्दर इनपुट भी कर सकते हैं, देख सकते हैं. सही ना. तो इसमें से इसमें इसके सम फीचर जो हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं आजकल जो हैं. इट कैन बी एक्सेसिबल थ्रू द मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स, पोर्टेबल कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स एंड सो ऑन. सही है. डॉक्टर जो है कुछ दे कैन सी द इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड ऑफ द पेशेंट एंड गिव एडवाइस फ्रॉम ईदर फ्रॉम देयर ऑफिस और फ्रॉम द होम. सही है ना. उनके पास एक्सेसेस होते हैं. इवन दे कैन मॉनिटर देयर पेशेंट्स बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम्स. यानी अगर उनके अंडर कोई पेशेंट एडमिट है, सही है ना, तो उनको फिज़िकली तौर पे ऑफिस आके यानी वीकेंड्स के ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं है. विद द हेल्प ऑफ EHR एक्सेस दे कैन लुक द पेशेंट्स के उसके अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट आ रही है, क्या चेंजिंग आ रही है, और अगर कोई मेडिसिन उसकी एडजस्ट करनी है तो इट आल्सो बी एडजस्टेड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ सिस्टम. ई प्रिस्क्रिप्शन का भी कॉन्सेप्ट है, यानी मीन्स के ऑनलाइन आपने उसको प्रिस्क्राइब करा दिया इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड में,
सो ये ई प्रिस्क्रिप्शन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक पेशेंट रिकॉर्ड में चली जाती है, वहाँ से पेशेंट्स का प्रिंट लेके या सिंपल सेल फोन में लेके फार्मेसी में जाके अपनी मेडिसिन ले सकता है। सही है, तो इस तरह से ये चीज़ इसमें बिल्ट इन फीचर है। नॉलेज रिसोर्स फॉर बोथ पेशेंट्स एंड द क्लिनिकल स्टाफ, यानी मीन्स के जो नर्सिंग स्टाफ होता है ख़ासकर उसके लिए। सही है ना। और इसके अलावा या तो सेम हॉस्पिटल की रेडियोलॉजी इमेजेस जो हैं वो डायरेक्टली सिस्टम में चली जाएं, या आप उसको स्कैन करके EHR सिस्टम में इंटीग्रेट करते हैं। सही है ना। और इसके कुछ ग्राफ्स एंड चार्ट वगैरह भी जनरेट हो जाते हैं। लाइक सपोज अगर आपने ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना है तो सुबह दोपहर शाम, तो उसका एक ग्राफिकल चार्ट अगर बन जाए तो इट विल बी क्वाइट ईजियर फॉर द डॉक्टर टू रीड के ब्लड प्रेशर की जो लाइक हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन की स्टेजेस हैं वो किस टाइम पे ज़्यादा हैं, किस टाइम पे कम है और किस टाइम पे नॉर्मल है। तो इट विल बी हेल्पफुल टू टेक अ डिसीजन फॉर द डॉक्टर। सही है। एंड डेफिनेटली डेटा मस्ट बी बैकअप फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सही है। सो बाय दिस वे दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स। अच्छा, अब जो इसकी डेवलपमेंट की बात आती है, यानी मीन्स के एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपर है। सही ना, दे कैन डेवलप द इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम। सही है। So, but there is some difference between if some biomedical engineer who has the concept of the software development and the normal software developer. तो software development में ये होता है कि उनको एक pseudo code provide कर दिया जाता है and they can develop the particular complete software. So, you know, so in the electronic health record system there are some standards that is required to implement in your electronic health record system. So, you know, because it is standardized by some international organizations that this particular thing must be required into the electronic health record system, because it helps to integrate the data from one electronic health record system to the another one. सही ना, अगर आपने इन प्रोटोकॉल्स को, इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया होगा तो आप अपने डेटा, यानी लेट सपोज कि आपने डेटा लिया तो डेफिनेटली वो एक सॉफ्टवेयर एक फॉर्मेट में होगा। सही ना। तो अगर वो फॉर्मेट अगर लेके आप कहीं और ट्रैवल करते हो और किसी अननोन सॉफ्टवेयर में ओपन करने की कोशिश करते हो तो इट कैन नॉट बी ओपन। लाइक अगर आप लेट सपोज के वर्ड का डॉक्यूमेंट है, वर्ड के लिए DOCX का उसका फॉर्मेट है, तो अगर आपके पास MS वर्ड का सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो वो फाइल कभी भी नहीं खुल पाएगी। सही ना। आप एडोब एक्रोबैट में PDF को वर्ड फाइल को डायरेक्ट ओपन नहीं कर सकते अनटिल और इसमें उसके सपोर्ट ना हो। सही है ना। तो इस तरह से यानी मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स विल बी रिक्वायर्ड। सो देयर इज़ सम स्टैंडर्डाइजेशन will be we are not studying these standards in much detail because it's a part of the medical informatics. Just I will give you an overview about these standards, so you can know if someone is going to develop the electronic health record, so he or she must know about these particular standards before implementing. So, you know, basic level के ऊपर आप without these standard you can made it. So, you know, but it is not recognized by the FDA और जितनी भी जो हेल्थ केयर रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में ड्रॉप के नाम से है। सही ना। सो you must follow these particular protocol standards to implement the electronic health record, in which some of the यानी अगर आपने अपना डेटा को ट्रांसफ़र करना है between the patient, between the doctor, so you use some transaction protocol. सही ना. So the transaction protocol will be applied in this particular electronic health record is accredited standard committee X12 नाम दिया गया इस ऑर्गेनाइजेशन का. It is charted by the American National Standard Institute ANSI जिन्होंने ASCII कोड्स भी डेवलप किए हैं. सही ना. So basically it is charted by ANSI that maintain electronic data exchange content inspired component architecture standard. सही ना. So basically ये लोग यानी mainly the data has been transferred through the TCP IP protocol और TCP protocol will be used, but उसके अंदर further कुछ modification है जो कि आपको ये ASC X12 का standard जो है वो follow करना पड़ेगा. सही है ना. to
implement electronic health record if you are going to develop your own. So इसमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज का एक स्टैंडर्ड है जिसको आपने इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद एक सर्न ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, सही ना, यूरोप की है और यूरोप में इसका बहुत ज़्यादा बंदखल है। सो उसका एक स्टैंडर्ड है दैट्स कॉल्ड द TC251, सही ना। TC251 इज़ अ स्टैंडर्ड दैट मस्ट बी यूज्ड टू डेवलप इन द इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम स्पेशली इन द यूरोप, सही ना। यूरोप के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा सा मैं आप इसको जितने भी जो स्टैंडर्ड्स ये मैंने मेंशन किए हुए हैं इसको एक दफ़ा नेट पे जाके ना ज़रूर थोड़ा सा इसको स्टडी आउट कर लीजिएगा, बिकॉज आई डू नॉट पुट मच डिटेल इन माई लेक्चर स्लाइड्स बिकॉज इट इज़ नॉट लाइक डायरेक्टली कंसर्न रिलेटेड टू दिस कोर्स, सही ना। सो बेसिकली दिस इज़ अ लाइक हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स, सही ना, हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड है। इसलिए जब मेडिकल इन्फॉर्मेटिक्स या हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड जब हम कोर्स कुछ पढ़ेंगे तो उसके अंदर इसको हम लोग ज़्यादा डिटेल में स्टडी आउट करेंगे। इसमें बेसिकली इसकी पूरी डिटेल लिखी हुई होगी, सही है ना, कि ये कैसे ये स्टैंडर्ड जो है वो कैसे काम कर रहा है, इसका स्ट्रक्चर और वर्क प्रोग्राम मीन्स कि ये पूरी टेक्निकल रिपोर्ट है, इसको रीड आउट करना पड़ेगा बिफोर गोइंग टू इम्प्लीमेंट, सही है। बेसिकली यूरोपियन कमेटी फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, सही ना, एक यूरोप की ऑर्गेनाइजेशन समझ लें जो कि स्टैंडर्ड को ऑर्गेनाइज करती है। तो उसमें जो हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स के स्टैंडर्ड्स हैं उसका नंबर TC251 है, सही ना। सो लाइक व्हेन एवर अ पर्सन और एनी कंपनी और सॉफ्टवेयर हाउस इज सेलिंग the electronic health record system, so they must highlight that their electronic health record system is developed by using this particular standard, सही ना। तो जितने ज़्यादा वो स्टैंडर्ड्स को डिक्लेयर करेंगे उतनी ज़्यादा उनके सॉफ्टवेयर की जो वर्थ होगी, सही है। DICOM, the topic will become later, सही ना। DICOM is another standard to maintain the radiological images, सही ना, digital images for medical communication like JPEG, PNG, TIFF and BMP. There are different imaging formats that is been exist in your computer system, so in which this is a format which is used for the all the radiological images, सही है ना। तो अगर ये फॉर्मेट का सपोर्ट आपके इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम में है so it will be much worthful. So it DICOM images only the images that has been saved in your electronic health record system, either they are MRI, X-ray, CT and so on. So basically it's again an international communication protocol standard for representing and transmitting radiological images, सही है, sponsored by National Electronic Manufacturing Association, सही है। So for this particular purpose this information is enough. HL7 it is like इसके मुख्तलिफ वर्जन्स आ रहे हैं HL7 के, पहले से HL6 भी था, 5 भी था एंड सो ऑन, एंड फर्दर HL7 में इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं। इसकी अपनी एक वेबसाइट भी है जिसके ऊपर आप इसको डिटेल में स्टडी आउट कर सकते हैं। बेसिकली what they are doing, they are standardizing the messaging and text communication protocol between the hospital physicians, सही है। सो इसके अंदर आपकी जितनी भी जो कम्युनिकेशन हो रही है ओवर द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़, सो वो HL7 के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिसके तहत आपने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है कि डॉक्टर जो है जब वो कुछ टेस्ट लिख रहा है इसके अंदर अबाउट द पेशेंट और फिर हॉस्पिटल से कोई इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में शेयर की जा रही है, सो यू मस्ट इम्प्लीमेंट HL7 इनटू द इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम, सही है। फिर उसके बाद फिर ISO सर्टिफिकेशन वगैरह होती है जिसका आप लोगों ने सुना होगा। तो ISO TC215 इज़ द स्टैंडर्ड, सही ना, और इसकी जो एक प्रिस्क्रिप्टिव जो डिटेल EHR आर्किटेक्चर जो उन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है ISO 18308 के अंदर इसको कम्प्लीटली डिफ़ाइन किया हुआ है कि जो इसका आर्किटेक्चर है इसको आपने कैसे डेवलप करना है, सही है। सो देयर इज़ अ वन स्टैंडर्ड दैट हैज़ बीन डिफाइंड हियर एज वेल and here as well, so you can see and integrate all of these features into your electronic health record system, सही है। तो इसको एज ए प्रोजेक्ट के तौर पे भी लिया जा सकता है, सही है। तो डेफिनेटली बट you cannot implement all the standards at the like the bachelor's level because it's like the commercial software,
implement the software. अच्छा, then definitely the motivation is already know it कि I told you many times about this, so yeah, so I'm not saying again and again, so you can read it, and if you want to ask any question, you can ask me later, maybe tomorrow, about the electronic health record system. So yeah, electronic health record system can be used in anything related to the doctors, patient, healthcare, primary care, secondary care, tertiary care, anywhere. Like it is used in the OPDs, सही है ना, इन पेशेंट के लिए यूज़ की जा सकती है, आउट पेशेंट में भी यूज़ होता है, उसमें भी यानी आउट पेशेंट में आप ये रिकॉर्ड रख सकते हैं कि आप पर डे आपके पास कितने पेशेंट जो हैं वो OPDs में आ रहे हैं, सही ना. प्राइमरी केयर हो गई, डिज़ीज़ स्पेसिफिक्स हो गई, सही ना, यानी मीन्स के करंटली तो कोरोना का बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, तो उसी तरह फिर एक सीज़न आता है जिसमें डेंगू का हो जाता है, फ्लू का बहुत ज़्यादा हो जाता है, सही है ना. जॉइंडिस वगैरह जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं तो उनमें किस सीज़न में ज़्यादा हो रहा होता है, एंड सो ऑन. इंटेंसिव केयर यूनिट ICU के अंदर इसको यूज़ कर रहे हैं. इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कितने पेशेंट्स आते हैं पर डे, तो उसका रिकॉर्ड, और कि किस किस्म के पेशेंट्स आते हैं इमरजेंसी में. So with the help of this you can like manage your hospitals things. कि लेट सपोज कि अगर आपके हॉस्पिटल में एक्सीडेंट के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं शाम के वक्त, तो व्हाट आर द थिंग्स दैट हैज़ बीन रिक्वायर्ड, सो यू मस्ट प्रिपेयर इट ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड एंड सो ऑन. तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो कि आप इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम से बेनिफिट ले सकते हैं. फिर नर्सिंग का पूरा कंप्लीट के जो नर्स की जो ड्यूटीज़ हैं इन द हॉस्पिटल्स के, जो इंजेक्शंस वगैरह लगाना, कुछ रीडिंग्स वगैरह लेना, तो वो कंप्लीट रिकॉर्ड जो है उसमें सेव हो रहा है. R&D डिपार्टमेंट होता है, सही ना, तो R&D विल बी extracting the data from the electronic health record, and they are doing some research and bring some new protocols, new standards, और फिर इसको हॉस्पिटल सिस्टम को मोर एफिशिएंट करने में ये रिसर्च डिपार्टमेंट जो होता है अपना किरदार अदा कर रहा होता है. सो बाय द हेल्प ऑफ जस्ट अ सिंगल सॉफ्टवेयर देयर आर सो मैनी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर लिंक्ड टुगेदर, यानी मीन्स एक सिंगल सॉफ्टवेयर के थ्रू काफ़ी सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट जो हैं दे आर गेटिंग सम बेनिफिट, सही ना. सो सम ऑफ द एडवांटेजेस आर शोन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. Stands for electronic medical record, and it gives us information that we need as physicians and medical staff. EMRs provide a clear, concise record. There's no longer errors caused by penmanship that can't be understood or read. It allows us to access our patient information anywhere. The medical record contains family history, social history, past surgical history, so we can see what's relevant to the patient. It'll include their current medication list, and it'll include an allergy list, any imaging services, lab testing, and it also has all the physician notes. An electronic medical record is a way for a patient's chart to travel with them in a safe and secure manner from clinic to clinic or clinic to hospital. The electronic medical record system has revolutionized medicine and is a great way to coordinate care for the patient. So the all features has been जो उसके features हैं जितने भी, so they are so called the advantages of the electronic health record system, सही है ना. So 24/7 accessible by doctor from the home. Every department must be interlinked with the electronic health record system. और जो पेपर बेस्ड रिकॉर्ड है, सही ना, डेफिनेटली इट कैन नॉट बी मेंटेन फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, सही है. सो जो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम होगा वो आपका कम्प्लीटली तौर पे मैनेज हो रहा होगा फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, सही है. डॉक्टर्स के लिए और जितना भी जो पेशेंट हैं, इन सब के लिए आपका जो रिकॉर्ड है कंप्यूटराइज जो है वो इजीली एक्सेसिबल है, सही है ना, और सिक्योर भी है, क्योंकि यू मस्ट रिक्वायर द ऑथेंटिकेशंस टू लॉग इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम, सही है.
फिर आपकी जो इमेजिंग का डेटा है और ECG वगैरह का डेटा है, इट विल बी सेफ, सही है ना। इन केस ऑफ ऑडियो टेप्स और द वीडियो टेप्स, सो इट विल बी सेफ, सही है ना। तो इसमें रिकॉर्डिंग जो है सेफ़ हो रही हैं। इसके अलावा यानी मीन्स के जो प्रिस्क्रिप्शन वगैरह हैं, डॉक्टर्स का रिकॉर्ड है, वो भी सारा इसमें कम्प्लीटली तौर पे सेव है, सही है। ई प्रिस्क्रिप्शन का ऑप्शन मौजूद है और फिर जितनी भी प्रिस्क्रिप्शन हैं, सही ना, उसका कंप्लीट रिकॉर्ड इसमें मौजूद है, सही है ना। और फिर यही कि इसमें एरर के चांसेस कम हैं, मेडिकल एरर के, कि क्योंकि इसमें ये होता है कि लेट्स सपोज़ कि अगर एक पेशेंट को एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है और उसके रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं आए उसके ऊपर, सही ना, कोई क्योंकि होता है कुछ एंटीबायोटिक्स किसी पेशेंट को सूट करती है, नहीं करती, तो इन केस के अगर कोई एंटीबायोटिक पेशेंट को सूट नहीं कर रही, सही है, तो वो आप इसमें इंटर कर देंगे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम में कि लेट्स सपोज के ऑगमेंटेड इट्स नॉट सूटेबल फॉर दिस पर्टिकुलर पेशेंट्स। सो नेक्स्ट टाइम अगर कोई और डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा तो वो उस चीज़ को देख लेगा, यार इसको ऑगमेंटिन जो है वो सूट नहीं करती, तो उसको किसी और कोई और एंटीबायोटिक देनी चाहिए, सही है ना। तो ये चीज़ पेपर बेस के फॉर्म में हमेशा मिस हो जाएगी, क्योंकि अगर आप पेपर बेस में रिकॉर्ड रखते हैं तो नोबडी कैन बॉदर के अगर ये मेडिसिन दी थी तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स आ रहा था पेशेंट को, सही है। तो इस तरह से इट इज़ मच मोर advantages, सही है ना। So we already seen so many advantages about the electronic health record systems, so but definitely there are some disadvantages as well, सही ना। So the biggest disadvantage at the moment is the cost of the a very good electronic health record system, सही ना। ये जो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम है, इट इज़ अबाउट द मिलियंस ऑफ डॉलर्स, सही ना, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इसकी कॉस्ट है। अगर ये 100% कम्प्लीटली प्रोटोकॉल्स के ऊपर बनाया गया है, इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द हॉस्पिटल्स लाइक स्पेशली इन पाकिस्तान दे आर डेवलपिंग देयर ओन इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम बाय यूजिंग नॉट 100% बट trying to use the some medical standards, you know. So they are developing their own, and if they are developing their own, then definitely they require some the professional software developing team, so they have to pay a lot, so you know. So initial cost जो है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड की वो काफ़ी ज़्यादा है, so you know. So this is the biggest thing. So usually the hospitals it's not like ready to purchase such kind of the expensive इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम की, जिसमें तमाम फीचर्स वाले जो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम है वो हों, सही है ना। फिर इसके अलावा ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम है उसको स्टोरेज भी चाहिए आपको, सही है ना, यानी मीन्स के हार्डवेयर स्टोरेज सर्वर, जिसकी मैंने शुरू में बात की थी। सो अब एक पेशेंट का अगर लेट्स सपोज 1 GB का डेटा है और आपके पास 1000 पेशेंट हैं, तो आपके पास तो एटलीस्ट के 1 TB तो उसी में आपका डेटा चला गया। सो डेफिनेटली टू स्टोरिंग द पेशेंट्स डेटा इन द इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम रिक्वायर्ड थाउजेंड्स ऑफ टेराबाइट स्टोरेज डिवाइसेस, है ना। तो इसमें जो भी पीकोबाइट तक का डेटा जो है हमें इस तरह के कोई सर पूरे एक बहुत बड़ी हिरार्की चाहिए होगी, तो डेफिनेटली यू नीड टू buy this particular servers to maintain the record. So again it's a costly thing, यानी मीन्स के सॉफ्टवेयर अलग कॉस्टली है और फिर इसकी जो मेंटेनेंस है रिकॉर्ड की वो अलग एक कॉस्टली थिंग है, सही है। फिर इन केस के अगर आपको जो पेशेंट का रिकॉर्ड है पेपर बेस्ड रिकॉर्ड, अगर इफ द एन हॉस्पिटल इज मेंटेनिंग फ्रॉम लास्ट 5 to 6 years, so to convert that particular system into the electronic healthcare system is also the time consuming, and you need some particular peoples to convert the paper based record into the electronic record system. So इस तरह से यानी इसके ये कुछ disadvantages भी हैं, सही है। सिक्योरिटी के मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि मीन्स के इसमें जो ऑथराइजेशन है, सही ना, स्टिल इट इज़ लाइक सम हाउ इट इज स्टैंडर्डाइज बट स्टिल द वर्क हैज़ बीन गोइंग ऑन, सही है। कि ऑथराइजेशन से मुराद ये है कि इफ़ अ पेशेंट इज़ गोइंग टू विजिट अ डेंटिस्ट, like if let's suppose we are talking about the same hospital, so is dentist allowed to see the cardiac record, यानी उसको cardiac record का access देना है नहीं देना है, सही ना।
कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें उसको डेंटिस्ट को ज़रूरत है, कुछ सिचुएशन ऐसी है जिसमें डेंटिस्ट को ज़रूरत नहीं है. सो स्टिल लाइक a kind of debatable और depend upon the hospitals SOPs कि वो इसको अलाउ करते हैं नहीं करते. Which field of record can monitor by another general practitioner, सही है ना. So that's called the authorization, सही है ना. One is called the authentication. Is this user really my physician? यानी means के जो इसको डेटा को एक्सेस कर रहा है कि क्या वही उनका जो मेन फिजिशियन है वही है या कोई और है या किसी और को एक्सेस देना है, सही है. और कि जो ये डेटा जो सेव है किसी भी सर्वर पे, अगर कोई इसको एक्सट्रैक्ट करता है जो अननोन पर्सन है तो क्या उस डेटा को रीड कर सकता है. तो वेयर द इंक्रिप्शन हैज़ बीन रिक्वायर्ड के जो डेटा है वो सिर्फ ऑथेंटिकेटेड या ऑथराइज पर्सन ही जो है वो उसको सही से देख सकता है. अदरवाइज़ अगर कोई और पर्सन उसको एक्सेस करे तो इंक्रिप्शन मस्ट बी अप्लाई, क्योंकि in the world some of the data are considered to be highly confidential. तो उसमें एक मेडिकल डेटा भी है, मेडिकल हिस्ट्री भी है, सही ना. कि जो मेडिकल हिस्ट्री है इट विल बी वेरी 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 मच कॉन्फिडेंशियल लाइक अ बैंकिंग सेक्टर, सही है ना. कि उसकी जो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की जो डेटा है वो लीक नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में. सो देयर इज़ एन हैकिंग कॉन्सेप्ट, देयर इज़ ए लाइक कंप्यूटर के अंदर कोई हैकर घुस के डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकता है. तो उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम के ऊपर, सही है. इसकी एक एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि इफ़ समवन इज़ गोइंग टू डेवलप देयर ओन EHR सिस्टम, सो देयर इज़ अ वेबसाइट कॉल्ड ओपन EHR, सही ना. मैं डायरेक्ट इस वेबसाइट पर पहले चला जाता हूँ. अगर यहाँ से खुल जाए, सही ना. It's a very good website if someone is really wants to develop their own electronic health record system, सही ना. Open EHR means कि ये basically open source है, इनका कुछ कोड वगैरह given है, you can modify according to your requirement and it is using in many countries, सही ना. इसको लोगों ने कहा है कि काफ़ी कंट्रीज़ में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है. Open EHR, Japan, China, Germany. So they converting this particular open source software into their own languages, सही ना. तो ये बेसिकली लैंग्वेजेस की भी बात हो रही है कि इसको उन्होंने अपनी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर दिया. ये इन्होंने तकरीबन काफ़ी हद तक जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो किया हुआ है. दिस इज़ बेसिकली अ वेब बेस्ड EHR सिस्टम, सही ना. तो इसका मतलब ये है कि ये नेट पे भी कनेक्ट हो जाएगा. प्रोटोकॉल का जो एडवांटेज है ना वो लैंग्वेजेस में भी बहुत ज़्यादा होता है. लाइक लेट्स सपोज के इफ़ यू वांट टू ट्रांसफ़र योर डेटा फ्रॉम लाइक लेट्स सपोज के फ्रॉम एनी इंग्लिश कंट्री टू जापान, सही है ना. तो होगा क्या कि आपने टेम्परेचर जो दिया हुआ है डेफिनेटली इंग्लिश में दिया हुआ है. लाइक किसी के पेशेंट का टेम्परेचर इट्स अबाउट 104 फ़ारेनहाइट, सो ही हैज़ सम हाई फीवर. तो वो जब जापान में अगर लेट्स सपोज आपने डेटा ट्रांसफ़र किया, सो उनके पास जापानीज़ लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड होगा. तो वो डेटा जो आपने इंग्लिश में सेंड किया इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द यूनिकोड. तो उनको जापानीज़ लैंग्वेज में वो डेटा शो हो रहा होगा, सही है. तो इस तरह से यानी मीन्स के जो सेंट्रलाइज इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ सिस्टम का जो रिकॉर्ड है ना उसको क्या कहते हैं आप जो हैं देख सकते हैं. एनीवन इज वांट टू से समथिंग? Reba, do you want to say something? आवाज़ सही आ रही है मेरी? इन केस कि अगर आपको आवाज़ में कोई डिस्टॉर्शन हो रही हो ना तो यू कैन लिसन द रिकॉर्डेड लेक्चर. सो रिकॉर्डेड लेक्चर में आई होपफुल के वॉइस क्वालिटी कदरे बेहतर होगी, सही है ना. सो मेक श्योर यू कैन विजिट दिस पर्टिकुलर वेबसाइट एंड सी सम पर्टिकुलर फीचर्स, सही ना. इसके फीचर्स में चलेगा व्हाट इज़ ओपन EHR. उन्होंने अपना थोड़ी सी डेफिनेशन बताई हुई है, विजन मिशन वगैरह बताया हुआ है. इट्स अबाउट स्टार्टिंग फ्रॉम 2002 से मेरे ख्याल में इसका ओरिजिन स्टार्ट हुआ हुआ है. तो उन्होंने अपना डिटेल्स बताई हुई हैं कि क्या क्या इसमें इम्प्रूवमेंट आई है. मैं भी इनकी वेबसाइट अक्सर विज़िट करता रहता हूँ. तो आई सी दैट एवरी like 6 months they have doing some improvement. They also have the YouTube
लाइक चैनल सही ना, यूट्यूब पे इनका चैनल एग्जिस्ट करता है, तो आप यूट्यूब पे चैनल पे भी जाके इनकी जो वीडियोस है वो देख सकते हैं सही ना। अगर यहाँ पे दिखाना शुरू की तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, सो यू कैन सी लेटर। ओपन EHR, इसको बेशक आप सब्सक्राइब कर लें। ओपन EHR क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट प्रेजेंटेशन। सो दिस इज़ अ थिंग कि मीन्स कि उनके सॉफ्टवेयर में ये फीचर भी है। अबाउट 2 hours and 17 minutes की वीडियो है। सो आई कांट प्ले राइट नाउ एट द मोमेंट। सो आप इसके थ्रू ये लर्न भी कर सकते हैं कि ये जो ओपन EHR है ये कैसे काम कर रहा है, कौन कौन से इसमें फीचर्स हैं। देयर आर सो मैनी वीडियोज़ दे हैव सही ना। सो it is like a very good platform that I have seen at the moment. They are implementing HL7 भी इन्होंने कुछ implement किया हुआ है सही ना। उसमें डेमोग्राफ, क्लिनिकल वर्कफ्लो वगैरह भी इनके उसमें मौजूद है सही है। So you can watch it, and if we get time once our lecture has been ended, तो हम कोशिश करेंगे कि अगर इस पर कुछ थोड़ा बहुत कोई काम हो सके सही है ना। अच्छा, एक असाइनमेंट नंबर 4 जो है सही है ना। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि असाइनमेंट नंबर 4 में आप लोग कोई प्रेजेंटेशन दें ऑनलाइन ही ना, यानी मीन्स के इस पर क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा लेक्चर दे दे के थक गया हूँ, तो थोड़ा सा एक लेक्चर कुछ ऐसा भी हो जिसके अंदर यू कैन टेल मी अबाउट द गिवन टॉपिक्स सही ना। ये टॉपिक्स मैंने दिए हुए हैं सही है ना। इस पर आप लाइक टू मेक अ 20 minutes प्रेजेंटेशंस अबाउट 10 to 15 स्लाइड्स उसमें रखिएगा सही ना। एक ही दिन में आप दोनों की कोई प्रेजेंटेशन हो जाएगी सही है। उस दिन हम लोग यानी आप इस तरह से स्क्रीन शेयर करिएगा और फिर हम लोग देख लेंगे सही ना। सो द डेट दैट हैज़ बीन लाइक आई डिसाइड इज़ अबाउट द 20th May सही ना। सो 20th May की डेट इट विल बी कम्स ऑन द नेक्स्ट वीक वेडनेसडे आई थिंक ना, नेक्स्ट वीक ऑफ वेडनेसडे होगा। तो उसमें इसको आप प्रेजेंट करिएगा। ये टॉपिक्स हैं टेलीमेडिसिन पाकिस्तान नाउ अ डेज़ की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में अभी जो करंट दिसंबर 2019 से आज की डेट तक जो टेलीमेडिसिन में जो हो रही है सही ना, तो उसके मुतालिक आप कोई प्रेजेंटेशन बना लें। टेलीमेडिसिन वर्ल्ड वाइड स्टिल दिसंबर 2019 टू डेट, यानी दिसंबर 2019 जैसे मैं कह रहा हूँ कि जो कोरोना वायरस पेंडेमिक है वो दिसंबर से शुरू हुआ था, तो उसके बाद जो टेलीमेडिसिन में थोड़ी सी एक इम्प्रूवमेंट आई है सही है ना। तो बहुत ज़्यादा इसमें काम होना शुरू हुआ है, तो उसके सिनेरियो के अंदर एक कोई प्रेजेंटेशन आप बना सकते हैं। फिर उसके अलावा रिमोट कोविड पेशेंट्स मॉनिटरिंग अगर हो रही है तो कैसे हो रही है। एम हेल्थ यानी मोबाइल हेल्थ का क्या किरदार है कोविड-19 में, या ऑलरेडी योर असाइनमेंट नंबर 3 जो है उसको भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं सही है ना। तो कोशिश करें लिटिल बिट थोड़ा सा डिफरेंट करने की इसके अंदर ना। सो दिस इज़ जस्ट अ प्रेजेंटेशन असाइनमेंट विच इज़ असाइनमेंट नंबर 4 जो कि आपने नेक्स्ट वेडनेसडे को देना है। तो स्टिल यू हैव मोर देन 2 weeks, यानी मोर देन 2 weeks का आपके पास टाइम है इसके ऊपर सोचने के लिए ठीक है। एनी क्वेश्चन? ये क्वेश्चन है उसामा और अरीबा? ओके, एज यूजुअल नो क्वेश्चन। हम लोग के माइक वगैरह सही हैं। मैं अब रिकॉर्डिंग जो है वो स्टॉप कर रहा हूँ ठीक है।